یہ کہانی ہے کراچی کے ایک ایسے شخص کی جس نے 100 سے زائد معصوم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ نہ صرف یہ بلکہ زیادتی کے بعد وہ بچیوں پر غلاظت بھی کرتا۔ 5 سال کی مومنہ گھر سے باہر نکلی، ہاتھ میں چند سکے تھے۔ وہ قریبی دکان پر گئی اور کہا، انکل مجھے چیز دے دیں۔ دکاندار نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چیز دے دی۔ اسی لمحے پاس ہی کھڑے ایک شخص کی نظر اس بچی پر پڑی۔ وہ شخص جوس کا ٹھیلا لگائے گلی کے کونے پر کھڑا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، بیٹا یہاں آؤ، میں تمہیں جوس دوں گا، اور وہ بھی بالکل فری۔ بچی خوشی خوشی اس کے پاس چلی گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ بیٹا کہنے والا یہ شخص آج اس کی معصومیت کو روک ڈالے گا۔ وہ شخص پہلے بچی کو جوس پلاتا ہے، پھر کہتا ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اور بھی چیزیں اور چاکلیٹس دوں گا۔ اب یہاں والدین کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جب کوئی انہیں جوس دینے یا چیز دینے یا چاکلیٹ دینے کے لیے بلائے تو وہ نہیں جائیں، کسی سے مفت چیز حاصل نہ کریں۔ ننھی سی مومنہ لالچ میں آ کر اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ وہ شخص اسے ایک خالی کمرے میں لے جاتا ہے۔ اندر ایک بڑا سا کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے اور کمرے میں کچھ عجیب سے نشانات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مومنہ گھبرا جاتی ہے۔ وہ شخص اسے بہلا کر کہتا ہے، میں تمہارے بابا کا دوست ہوں بیٹا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ تمہارے کپڑے بہت گندے ہو گئے، میں تمہیں نئے کپڑے دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ مومنہ کے کپڑے اتارنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ اس معصوم بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ صرف ایک مومنہ کی کہانی نہیں بلکہ ایسی 100 سے زائد بچیوں کے ساتھ وہ یہی ظلم کر چکا تھا۔ یہ شخص آخر کون تھا؟ کب سے اس درندگی میں ملوث تھا اور کب سے یہ سب کچھ کرتا آ رہا تھا؟ اور اس وقت کہاں ہے؟ کیسے پکڑا گیا؟ واردات کا طریقہ کیا تھا اس کی؟ یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن ساتھ ہی آپ کے لیے ایک نصیحت بھی ہے۔ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، انہیں گھر سے اکیلا باہر نہ بھیجیں۔ اگر بھیجیں بھی تو ان کو ٹرین کریں، ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیے۔ ان کو سمجھائیے کہ جب کوئی شخص انہیں چیز دینے کے بہانے، پیسے دینے کے بہانے یا کسی اور بہانے اپنے پاس بلائے تو وہ نہیں جائیں، بھلے رشتہ دار ہو یا غیر۔ آپ کو اپنے بچوں کا بہت ہی خیال رکھنا ہوگا۔ میں ہوں معظم شاہ اور تھنک کرائم کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 2011 میں، جب شبیر احمد ایبٹ آباد سے کراچی آیا۔ مقصد صرف ایک تھا، روزگار کی تلاش۔ ابتدائی 2 سال اس نے محنت مزدوری میں گزارے۔ انہی دنوں اس کی ملاقات آصف نامی ایک شخص سے ہوئی۔ آصف کراچی میں برسوں سے رہ رہا تھا۔ اس کے تعلقات جرائم پیشہ افراد سے تھے۔ وہ جوا کھیلتا، شراب پیتا، گھناؤنے کاموں میں ملوث رہتا۔ شبیر تو سیدھا سادہ انسان تھا، مگر کہا جاتا ہے نا کہ جس صحبت میں بیٹھو گے ویسے ہی بنو گے۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کچھ اچھا سیکھو گے، بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو بروں میں ہی شمار کیے جاؤ گے۔ شبیر پر بھی آصف کی صحبت کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے وہ صرف ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ اس کی عادات اپنانے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے کہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن میں گلیوں میں پھرتے، چوریاں ڈکیتیاں کرتے اور رات میں سارا پیسہ جوا اور شراب میں اڑا دیتے۔ یاد رکھیں، جب انسان اپنے ہاتھوں سے گناہ کی داستان لکھنے لگے تو پھر اس کے انجام کی سیاہی اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ توبہ کی مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شبیر اور آصف کی یہی کہانی ہے۔ وہ جرم کی دنیا میں اتنا آگے نکل گئے کہ واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے اور پھر ایک نیا خوفناک چیپٹر شروع ہوا۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد سے کم عمر بچیوں کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کا کیس اور گرفتار ملزم سے دوران تفتیش اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ موبائل فون سے ملنے والی ویڈیوز بھی فورینسک کے لیے بھیج دی گئی ہیں۔ بچوں کو یہ لالچ دے کر کہ انہیں فری میں کوئی چیز دے گا، کوئی چیز ان کو دینے کے بہانے ان کو بلاتا تھا اور اپنے گھر میں لے جاتا تھا جہاں پر وہ اکیلا رہتا تھا۔ سال 2012
आसिफ और शब्बीर एक ऐसी लत में गिरफ्तार हो गए जो सिर्फ तबाही की तरफ ले जाती है। उन्होंने डार्क वेब पर जाना शुरू किया, जहां बच्चों के साथ होने वाली दरिंदगी की वीडियोस मौजूद थी। पहले ये वीडियोस सिर्फ तजस्सुस के तौर पर देखते, लेकिन देखते ही देखते ये लत बन गई, यानी लस्ट। दोनों सारी रात अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बच्चों के साथ होने वाले सफाक मनासिर देखते रहते, लेकिन इस लत ने उनके अंदर एक और आग भड़का दी, एक ऐसी आग जिसे बुझाने के लिए वो आपस में अपनी हविस पूरी करते, मगर उनकी हैवानियत नहीं रुक रही थी। मोबाइल स्क्रीन पर जो बच्चों के साथ ज्यादती के मनाजिर वो देख रहे थे, वो हकीकत में ऐसा करना चाहते थे, और ये प्यास, ये फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। आपने सुना होगा ना डोपामाइन, जितना ज्यादा नशा बढ़ता जाता है डोपामाइन उतना ज्यादा बढ़ता जाता है, और अब पहले से ज्यादा की तलब होती है। और यही तलब पूरी करने के लिए एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि अब ये घिनौनी ख्वाहिश सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि वो उसे हकीकत में दोहराएंगे। एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने जल्द पूरे कराची को हिला कर रख दिया। आखिर शब्बीर और आसिफ का प्लान क्या था? साल 2011-12 में दोनों ने एक ऐसा भयानक मंसूबा बनाया जो इंसानियत को शर्मा देने वाला था। प्लान ये था कि छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को पैसों की लालच देकर वरगलाएंगे, अपने पास बुलाएंगे, फिर उनके साथ ज्यादती करेंगे। और अपनी इस सारी दरिंदगी को वो रिकॉर्ड भी करेंगे। उसके बाद वो वीडियोस या तो मार्केट में बेचने जाएंगे या फिर डार्क वेब पर अपलोड कर देंगे। इस तरह उन्हें एक तरफ से बहुत बड़ी तादाद में पैसा भी आता और दूसरी तरफ उनकी हविस भी पूरी होती। फिर आसिफ और शब्बीर ने यही करना शुरू कर दिया। वो मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर अपने जाल में लाते, पैसे दिखाकर लालच देते, और फिर उन बच्चों के साथ वो सब करते जो वो डार्क वेब पर देखा करते थे। वक्त गुजरता गया, मगर याद रखें, कुदरत जब इंतकाम लेती है तो दुनिया देखती है। साल 2018 आ चुका था। एक दिन आसिफ और शब्बीर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार जा रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। शब्बीर तो उछलकर फुटपाथ पर जा गिरा, मगर आसिफ डायरेक्ट डंपर के पहियों के नीचे आ गया। वो मौके पर ही हलाक हो गया। खसकम जहां बाग। ये वो लम्हा था जहां शब्बीर के पास मौका था कि वो अपने जराइम से बाज आ जाता, मौत से डरता, शायद नई जिंदगी शुरू कर लेता, मगर ऐसा नहीं हुआ। अपने दोस्त की मौत देखकर भी उसने सबक हासिल नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर का हैवान अभी जिंदा था। शब्बीर ने एक बार फिर अपनी घिनौनी दुनिया का दरवाजा खोला। इस बार उसने अपने जुराइम को मजीद अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया ताकि किसी की पकड़ में ना आए। उसने एक डायरी बनाई। आपको याद है, मैंने इंट्रो में एक मोमिना बच्ची की कहानी सुनाई थी। अच्छा, ये भी वाजे कर दूं कि ये नाम मोमिना हमने फर्जी रखा है, बच्चों की या बच्चियों की आइडेंटिटी छुपाने के लिए। पुलिस के मुताबिक शब्बीर गुज़िश्ता 10 साल से यही खेल खेल रहा था। मासूम बच्चे बच्चियों को अपने जाल में फंसाता, उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर देता। अब सवाल यह है कि खतरनाक मुल्जिम शब्बीर पकड़ा कैसे गया। रूटीन के मुताबिक शब्बीर अपने जूस के ठेले पर बैठा था। मार्केट लोगों से भरी थी, सब अपनी अपनी ग्रोसरी खरीद रहे थे, बाकी चीजें खरीद रहे थे, मगर इसी भीड़ में एक बच्ची की एंट्री होती है, एक और मासूम बच्ची, अलीजा। अलीजा काफी देर तक शब्बीर के ठेले के करीब खड़ी इधर उधर देखती रही। शब्बीर को लगा जैसे आज उसे एक और शिकार मिलने वाला है। उसने बच्ची को अपने पास बुलाया, पैसों का लालच दिया और जूस पिलाने के बहाने अपने साथ घर ले गया। वहां उसने अलीजा के साथ भी वही सब किया जो इससे पहले वो कई बच्चियों के साथ करता आ रहा था। लेकिन इस बार कहानी एक नया मोड़ लेती है। शब्बीर की गिरफ्त की कहानी भी इसी कमरे से शुरू होती है जहां वो अपने जुर्म किया करता था। शब्बीर का ध्यान कहीं और था कि इतने में अलीजा की नजर एक यूएसबी पर पड़ती है। वो उसे उठाती है और लेकर भाग जाती है। उसे मालूम नहीं था कि इस यूएसबी डिवाइस में क्या है। वो तो बस कार्टून्स देखने के शौक में उसे अपनी एलईडी में लगाना चाहती थी। अब अलीजा ये यूएसबी एक डाउनलोड शॉप पर ले जाती है और कहती है
अंकल मुझे इसमें कार्टून और सॉन्ग्स डाल दें। जब दुकानदार ने ये यूएसबी अपने कंप्यूटर में लगाई तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वो सारा डेटा उस यूएसबी में मौजूद था जो कुछ उस खाली कमरे में हुआ करता था। 100 से जायद मासूम बच्चे और बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने की वीडियोस, वो वीडियोस जो शब्बीर अपनी हवस पूरी करने के लिए बनाता था और फिर मुमकिना तौर पर डार्क वेब पर फरोख्त करता था। अब चूंकि दुकानदार इस जूस वाले को पहचानता था तो उसने फौरन मोहल्ले में शोर मचाना शुरू कर दिया। अब एक हुजूम इकट्ठा हो गया। वो उसके ठेले पर पहुंच गए। लोगों ने उसे पकड़ा और बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। उसका पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया। अगर पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो मुश्तैल हुजूम उसे वहीं मार डालता। 10 सितंबर 2025 को शब्बीर कराची के इलाके कय्यूमाबाद से गिरफ्तार हो गया। अब डिफेंस पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। शब्बीर को हवालात में बंद किया और उसके घर पहुंचकर तलाशी ली। वहां से मजीद हैरानकुन शवाहिद मिले। अब यहां पुलिस को एक डायरी मौजूद थी, एक मोबाइल फोन जिसमें 10 साल पुराना रिकॉर्ड भी मौजूद था। यहां पुलिस को मजीद यूएसबी डिवाइसेस भी मिली जिसके अंदर वही सारा डेटा मौजूद था। हैरानकुन तौर पर पुलिस ये बताती है कि वहीं से पुलिस को कुछ बच्चियों के स्कूल के यूनिफॉर्म भी मिले। अगले ही रोज पुलिस ने तमाम एविडेंस के साथ शब्बीर को अदालत में पेश किया। जज, मीडिया और अदालत सब वहां मौजूद थे और हैरान थे। सबकी जबान पर एक ही सवाल था कि क्या 100 से ज्यादा बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाकर, उनकी वीडियोस बनाकर, उनको बहला फुसलाकर उनके साथ जुल्म और ज्यादती करने वाला शख्स कोई इंसान हो सकता है? उस वक्त अदालत में बैठे तमाम ही लोगों पर न सिर्फ सख्ता तारी था बल्कि वो शदीद गुस्से में भी थे। सरकारी वकील ने जज के सामने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्जिम के खिलाफ सबूत इतने मजबूत हैं कि उन्हें मजीद 5 दिन का रिमांड दिया जाए ताकि वो तफ्तीश कर सके। अब 13 सितंबर 2025 को पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुल्जिम शब्बीर का 5 रोज का मजीद रिमांड हासिल कर लिया। इस केस से मुतासिरा 4 बच्चियों ने अदालत में अपने 164 के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। 164 का बयान होता क्या है वो भी आपको बता दूं। दरअसल दिफा 164 ज़ाब्ता फौजदारी 1898 CRPC के तहत वो बयान है जो किसी भी केस में मुतासिरा शख्स, मुल्जिम या गवाह मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाता है। इस बयान की सबसे अहम बात यह है कि ये पुलिस के बजाय बराह रास्त मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, इसीलिए इसकी कानूनी अहमियत और वजन ज्यादा होता है और ये अदालत में बतौर मजबूत सबूत इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे के साथ ज्यादती हुई है और वो पुलिस के बजाय बराह रास्त मजिस्ट्रेट को हकीकत बताता है, ये कोई गवाह ये चाहे कि उसका बयान महफूज हो जाए ताकि बाद में वो किसी भी दबाव का शिकार होकर बयान न बदल दे, तो वो 164 का बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। इसीलिए जब कोई कहता है कि मैं अपना 164 का बयान दूंगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो अदालत के सामने अपनी मर्जी और किसी भी दबाव के बगैर असल वाकया बयान करेगा। इन बच्चियों ने अदालत में मौजूद शब्बीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो शख्स है जिसने हमारे साथ ज्यादती की थी। पुलिस ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम एतराफ़ जुर्म करना चाहता है। उसकी दरखास्त दायर कर दी गई है। अब इस वक्त शब्बीर पुलिस की कस्टडी में है। उसके खिलाफ 7 मुकद्दमात दर्ज हो चुके हैं, जबकि मजीद मुतासिरीन की तलाश जारी है। अब यहाँ मैं एक अहम नुक्ता शामिल कर दूं। ये जो ज्यादती या बाज़ वक्त चोरी डकैती के भी मुतासिरीन होते हैं, वो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, जिस वजह से जो मुल्जिम अगर पकड़ा भी जाए तो उसे छूट मिल जाती है, क्योंकि जब मुल्जिम को अदालत में पेश किया जाता है तो पुलिस के पास कोई ठोस गवाह मौजूद नहीं होता या वो मुतासिरा शख्स मौजूद नहीं होता जिसके साथ वाकया रोनुमा होता है। सबसे पहले आप ये एसएसपी साहब का बयान मुलाहिजा कीजिए। ये हज़ारे का रिहायशी है और 2014-15 से कय्यूमाबाद में इसने रिहाइश अख्तियार की। 11 से ये कराची में आया। पहले नीलम कॉलोनी में रिहाइश पजीर था, फैमिली थी, फिर फैमिली शिफ्ट होने के बाद इसने यहाँ चढ़ा रिहाइश अख्तियार की। जब पकड़ा गया उस टाइम महीना 1.5-2 पहले इसने अपने लिए एक सेपरेट एक कमरे का मकान भी सेक्टर C कय्यूमाबाद में ले लिया था। जो घर की छोटी मासूम बच्चियाँ जाती आती थी 100 रुपये दे के, पहले उसकी बॉडी टच पे उसको ले आता था मोटिवेट करके, फिर उसके बाद उसको 200 करके फिर उसके साथ ज्यादती वगैरह का इर्तिकाब इसने शुरू कर दिया। जो लास्ट टाइम जो लड़की ज़्यादा अटैच थी तो वो इसकी कहीं USB लेके चली गई घर से,
वो साथ पड़ोस में किसी दुकान पे गई, उसने दुकान पे देखा कि इसी लड़की की इस तरह की वीडियोस है। उसने उससे थोड़ी बार पूछ की और पूछगछ शुरू की लड़के के बारे में। उसने फिर अपने मोहल्ले के 4 लड़कों को बुला के बताया, उसको एक आधी 8 GB की USB की उन लोगों ने पकड़ के फिर थोड़ा बहुत जैसे आवाम का रिएक्शन होता है तो फिर हमें हवाले किया। फिर हमने जब मजीद इंट्रोगेट किया, इनसे USB और सारी चीज़ें बरामद की तो लातादार वीडियोस और तस्वीरें निकली। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऊपर आजम गोपान साहब है वो इसकी कर रहे हैं। और वीडियो बनाने का मकसद क्या है, कहीं जो है ना डार्क वेब वालों को हिसाब खरीदो फरोख्त इस तरह की हर जाविये से उसको देख रहे हैं। तो लिहाजा जो भी चीज़ें होती है वालिदैन को चाहिए कि वो खुद जाए, खुद खरीदें, खुद घर पे लाएं, बजाय अपनी मासूम बच्चों को भिजवाएं। पहले एक मुतासरा बच्चे के वालिद ने FIR में लिखवाया कि उसके बेटे ने 2022 में बताया था कि उसके साथ शब्बीर ने ज्यादती की थी, लेकिन लाजमी बात है गुर्बत और थाना कचेरी के मसाइल के खौफ से वो खामोश हो गया और उसने रिपोर्ट नहीं करवाई। यानी बाज औकात वालिदैन भी जुल्म सहने के बाद ये खामोशी न सिर्फ इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है बल्कि जालिमों के हौसले भी मजीद बढ़ाती है। और यही वो खामोशी होती है जो दूसरे बच्चों को भी शिकार होने से रोक नहीं पाती। शब्बीर का ये केस इस बात का सबूत है कि खामोशी हमेशा मुजरिम के लिए ढाल बन जाती है और मुतासिरीन की फहरिस्त दिन ब दिन तवील होती जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है, लेकिन अगर खामोशी तोड़कर पुलिस को सब कुछ बताएंगे, रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, तो मुजरिमों का हौसला भी टूटेगा, वो पकड़े जाएंगे, सल्लाखों के पीछे आएंगे। मिलते हैं अगली जुर्म की दास्तान के साथ, मगर इस उम्मीद के साथ कि हमारा मुआशरा जुर्म से पाक हो।